Hello students, this is part third video of revisional sample paper for class 11th subject biology. As you all know, I have selected the question paper from Kendriya Vidyalaya Sangathan, the first question paper that I am going to revise. Since part 2 video lecture you have seen the question number from section 1, section A and some question from section B. The question paper was actually is sessional ending examination, and this is the sample question paper. It means there is no any relation of this question paper with upcoming examination, but most of the question that you will find in the upcoming examination will be available from this question paper. The question paper patterns are actually based on 3.5 hours of overall marks, and it is about 70% marks of the total question paper, that is 70 marks. The rest 30 marks will be from your practical examination. This is all about matter of subject biology class 11. You need to focus on the general instruction and many more things. In past one video lecture you have seen the section 1 is all about done. I hope you don't have any problem regarding section 1. If you have any problem from any question of section 1, section A, then you can frequently ask. I will try to explain in next video lecture. Now this one is section B. In section B, the question number 6, the question number 7, the question number 8 and question number 8 part 2 is actually over. Also the question number 9 is over. Listen. In last video lecture you have seen the description of question number 10 was very short. This is about different kinds of vertebra, their number present in vertebral column. As you all know, we all are placed in vertebrata. Why? Because of having the vertebral column, that is known as backbone. There are about 26 backbones in our vertebral column. How many? 26 backbone. And these 26 bones are distributed in 4 major parts, actually 5 major parts: the sacral, caudal, lumbar. The first is cervical, thorax, lumbar, sacral, caudal, the 5 different parts of our vertebra. Cervical bones are 7 in number, thoracic bones are 12 in number, lumbar bones are 5 in number, and sacral bones are 1 in number, and caudal bones are also 1 in number. If you count all 7, 12, 5, 1, 1, there will be 26. So all 26 bones are there in our vertebral column that form the vertebrae, that is different vertebrae. Now back to question number 11. The question number 11 is water flow beyond the cortex in root not through the symplastic pathway. Why? देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस साल सिलेबस में नहीं है. ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, चैप्टर 12 का क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये आपको बताया जाएगा. हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि नीट वगैरह में आप अपीयर्ड होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं. एक्चुअली जो हमारा रूट हेयर्स होता है, ये प्लांट्स में रूट है, ये प्लांट्स के रूट हेयर्स है. रूट हेयर को जब आप मैग्नीफाई करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? इसके डिफरेंट सेल्स. और ये वाटर जब एब्जॉर्ब करता है तो वाटर इसमें 2 तरह से मूव करता है. एक सेल के बाहर मूव करता है, सेल के बीच में जो गैप होता है. एक्चुअल में जो हमारा सेल, एक सेल दूसरे सेल के बीच में इस तरह से सेल ये बना, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल है. ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस. तो एक्चुअल में सेल के बीच से होकर के, ऐसे सेल के बीच से होकर के वाटर मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट मूवमेंट्स. ठीक है, और कभी कभी सेल के ऐसे सेल के बीच से ना होकर के सेल के ऐसे थ्रू होकर के मूव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लास्ट मूवमेंट्स. क्या बोलते हैं हम लोग? सिम्प्लास्ट मूवमेंट्स. तो 2 तरह का मूवमेंट्स है, द मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन बिटवीन द सेल्स एंड मूवमेंट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनसाइड द सेल्स, दैट इज नोन एज सिम्प्लास्ट. लेकिन ये कॉर्टेक्स तक आते आते देखो, ये एपिडर्मिस है, ठीक है, ये एंडोडर्मिस है, ये क्या है? कॉर्टेक्स है, ये वैस्कुलर बंडल है. तो कॉर्टेक्स तक आते आते सेल जो है, चाहे एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो,
सब क्या हो जाते हैं, सिम्प्लास्टिक ही हो जाते हैं, यानी सम साइटोप्लाज्म से मूव करना चालू कर देते हैं। रीजन क्या है कि हमारा जो कॉर्टेक्स रीजन है, सपोज दैट ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन है, कॉर्टेक्स रीजन में एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रिप होता है, इस स्ट्रिप को हम लोग बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से वाटर मिनरल्स इसके आगे रास्ता नहीं मिल पाता, तो सेल के सेंटर से होके जाना पड़ता है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसके हिसाब से हम बात करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, द वाटर फ्लो बियॉन्ड कॉर्टेक्स इन रूट ओनली थ्रू सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स। बोल रहा है कि वाटर जो है, जो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स के थ्रू मूव कर रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, वाटर जो कॉर्टेक्स के थ्रू मूव कर रहा है वहाँ पे वो सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स को शो कर रहा है। रीजन क्या है कि जब सेल के बाहर बाहर से मूवमेंट्स होगा तो एपोप्लास्ट होगा, सेल के अंदर से मूवमेंट्स होगा सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स होगा। चूँकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है इसलिए इसके बाहर यहाँ से मूवमेंट्स नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से वाटर थोड़ा अंदर हो जाता है। तो लिखेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप दैट इज वाटर रेजिस्टेड, सो द वाटर दैट फ्लो बियॉन्ड कॉर्टेक्स ऑफ रूट्स ओनली थ्रू सिम्प्लास्टिक मूवमेंट्स नॉट थ्रू एपोप्लास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, इसको आपको जानना है, समझना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज व्हाट आर द माउथ पार्ट्स। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच विच पार्ट्स अमॉन्ग देम एक्टिंग एज टंग। देखो डिफरेंट माउथ पार्ट्स क्या है, लैब्रम, लैबियम, मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, मैग्जिला। अभी आपको लिखवा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। कॉकरोच हालांकि सिलेबस में नहीं है इस साल, चैप्टर 7 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 7 में सिर्फ टिश्यूज़ पढ़ने हैं, हालांकि चैप्टर 7 है लेकिन चैप्टर 7 में टिश्यूज़ पढ़ने हैं, कॉकरोच के बारे में नहीं पढ़ने हैं। फिर भी आप लिख लीजिए कॉपी में, मैग्जिला, मैंडिबुल, सब मैग्जिलरी ग्लैंड, लैब्रम, लैबियम। ठीक है, इसके अलावा एंटीनी। तो ये सब क्या होते हैं, ये कॉकरोच के डिफरेंट माउथ पार्ट्स हैं, जिसमें से जो लैब्रम और लैबियम होता है यही टंग का काम करता है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हालांकि उस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग बॉडी, differentiate the nucleotide and nucleoside, name nitrogenous base which are purine and pyrimidine। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन का रिवीजन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी किया था। लास्ट वीडियो लेक्चर मीन्स ये इसका वीडियोस आप अवेलेबल है, इस वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वीडियो लेक्चर अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता तो एक बार नॉकिंग करिए, एक बार अवेयर करिए, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल आपको ये जानना है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, चलो आते हैं, एग्जाम्पल जरूर लिख देना है, एग्जाम्पल लाइक डीएनए एंड आरएनए। एक बातें और बढ़ा देना, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, ये बातें आगे जरूर बढ़ा देना, दैट फॉर्म द जेनेटिक मटेरियल्स ऑफ द लिविंग बीइंग। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट द न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंट आपको बताना है। देखो इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में जब मैंने न्यूक्लियोटाइड आपको बताया था, एक्सप्लेन किया, तो आपको कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, इस न्यूक्लिक एसिड के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड बनता कैसे है, ये न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड के बेसिक 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड का जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है वो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस होता है।
तो लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड में बेसिक डिफरेंट यही होता है। द न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप बाय 1 पेंटोस सुगर, 1 नाइट्रोजनस बेस एंड 1 फॉस्फेट रेडिकल, while the nucleosides are only the composition of pentose sugar and nitrogenous bases। ठीक है, देखो जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन है ये, द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड्स आर द composition are the key ingredients of or the monomeric units of nucleic acid that consist the nitrogenous base, pentose sugar and phosphate radical। nucleotide consist nitrogenous base, pentose sugar and phosphate radical। now the nucleotide has the three components nitrogenous base, phosphate radical and the pentose sugar। ठीक है, चलो आते हैं अगला। मैंने जो पॉइंट बताया न्यूक्लियोसाइड के बारे में, न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ओनली नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस सुगर, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। नाउ द सेकेंड डिफरेंस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस सुगर एंड फॉस्फेट रेडिकल फ्रॉम द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो वी कैन से दैट द न्यूक्लियोटाइड इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ the nucleic acid, while the nucleoside is not a monomeric unit, only it has the nitrogenous base and pentose sugar। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये दिया हुआ है कि नेम द नाइट्रोजनस बेसिस विच आर प्यूरिन एंड पिरिमिडीन्स। देखो प्यूरिन बेसिस के दो एग्जाम्पल हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। पिरिमिडीन बेसिस के तीन एग्जाम्पल हैं, साइटोसिन, थियामाइन, यूरेसिल। so there are two group of nitrogenous base from the purine and three different group of nitrogenous base from the pyrimidine। इसके पहले आपको बताया गया था कि प्यूरिन जो है मोनोसाइक्लिक रिंग होते हैं, प्यूरिन बाईसाइक्लिक होते हैं, सॉरी प्यूरिन बाईसाइक्लिक रिंग होते हैं और पिरिमिडीन क्या होता है, मोनोसाइक्लिक रिंग होता है। ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं और इवन दो ये कभी भी किसी भी टाइम एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, व्हाट आर एंजाइम्स, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, डिफाइन एपो एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। एपो एंजाइम्स और को एंजाइम्स के बीच में डिफरेंट पूछा है। ठीक है, बता देते हैं यहाँ पे, एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और एंजाइम इनहिबिटर में बेसिक डिफरेंट क्या होता है। देखो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिटर ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो कि ये एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम। ठीक है, ये उसका सबस्ट्रेट है लिपिड। लिपिड ये लाइपेज लिपिड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बातें क्लियर हुई। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंजाइम यहाँ पे है उसका सबस्ट्रेट न पार्टिसिपेट करके सबस्ट्रेट लाइक कोई कंपोनेंट्स सबस्ट्रेट से पहले जा करके एंजाइम से जुड़ जाता है, तो ये सबस्ट्रेट अब नहीं जुड़ पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर दोज विच रिएक्ट विथ एंजाइम बिफोर सबस्ट्रेट, विथ रिएक्ट विथ एंजाइम बिफोर सबस्ट्रेट। ठीक है, चलो डिफाइन एपो एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। एपो एंजाइम्स आर द प्रोटीनस फैक्टर while the rest non-proteinous part is known as coenzymes। ठीक है, it is the proteinous part of enzyme and this is the non-proteinous part of coenzymes। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 तक सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने सेक्शन ए को डन किया, सेकेंड पार्ट में हमने सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन को लिया,
फर्स्ट पार्ट में हमने 5 क्वेश्चन सेक्शन ए से लिया था, सेकेंड पार्ट में आपको सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन मिला, थर्ड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के 2 क्वेश्चन, यानी कि इसमें भी हमने 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 यहाँ पे हमने नहीं लिया, बल्कि एक और क्वेश्चन था और करके 13 में, उसको मैंने अटेम्प्ट किया। तो इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिली। दिस इज द थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ सैम्पल पेपर रिविजन। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल रिवाइज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड टिल यू नीड टू make the notes regarding the revised sample paper since past 2 video lecture. Thank you.